பேரும் அல்லும்படி 6 முதல் 60% வரை ஆடி தள்ளுபடியுடன் சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ். ஹாலிடேஸ்னாலே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான். ஜிடி ஹாலிடேஸ், South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அம்ரோஹா மாவட்டம் ஹசன்பூர் பகுதியில் உள்ள தௌரியா கிராமத்தில் வசிக்கும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 சகோதரிகள் ஒரே இளைஞரை திருமணம் செய்து கொண்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 20 வயதான சரோஜ், 19 வயதான சாவித்ரி மற்றும் 18 வயதான சந்தோஷி ஆகிய 3 சகோதரிகளும் இன்ஸ்டாகிராமில் பிரபலமாக இருந்து வருகின்றனர். லட்சக்கணக்கானோர் இவர்களை பின்தொடர்கின்றனர். இவர்கள் ஒன்றாக ரீல்ஸ் வீடியோக்கள் எடுத்து பதிவிட்டு வரும் நிலையில் கடந்த ஜூலை 17ஆம் தேதி அந்த கிராமத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற சாமுண்டா மாதா தேவி கோயிலில் ஒரே இளைஞரை திருமணம் செய்து கொண்டதாக வீடியோ வெளியிட்டுள்ளனர். திருமண வீடியோவில் விகாஸ் என்ற இளைஞர் 3 சகோதரிகளின் நெற்றியிலும் சிந்தூர் வைப்பது போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் வைரலாக பரவியதை தொடர்ந்து பல்வேறு தரப்பினரிடமிருந்து கண்டனங்கள் எழுந்தன. சில இந்து அமைப்புகள் இதை சனாதன தர்மத்துக்கு எதிரான செயல் என்று விமர்சித்தன. இதற்கு விளக்கம் அளித்த சகோதரிகள் ஒரு வீடியோவில் கூறியதாவது: நாங்கள் சிறு வயதிலிருந்தே ஒன்றாக வளர்ந்தவர்கள். திருமணத்திற்கு பிறகு நாங்கள் பிரிய நேரிடும் என்பதை அறிந்து மிகவும் மனமுடைந்தோம். பிரிந்து வாழ முடியாது என்பதால் தற்கொலை செய்து கொள்ள கூட நினைத்தோம். பின்னர் அதற்கு பதிலாக ஒரே ஆணை திருமணம் செய்து கொண்டு ஒன்றாக வாழ முடிவு செய்தோம். நாங்கள் அனைவரும் வயது வந்தவர்கள். எங்கள் சொந்த விருப்பத்தின் அடிப்படையில் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளோம் என்று தெரிவித்தனர். இந்த 3 சகோதரிகளையும் திருமணம் செய்து கொண்ட விகாஸ் ஷியாம்புரி கிராமத்தை சேர்ந்தவர். இவர் கடந்த 6 மாதங்களாக இந்த சகோதரிகளின் ரீல்ஸ் வீடியோக்களுக்கு கேமராமேனாக பணியாற்றி வந்தார். பல வீடியோக்களில் அவர் அவர்களின் கணவராகவும் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த சம்பவம் சமூக ஊடகங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சட்டப்படி இத்தகைய திருமணத்திற்கு அங்கீகாரம் இல்லை என்று சட்ட வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். போலீசார் சம்பந்தப்பட்ட அனைவரையும் விசாரித்து வருகின்றனர். இருப்பினும் இதுவரை எந்த புகாரும் பதிவாகவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விசித்திரமான திருமணம் நாடு முழுவதும் பரபரப்பையும் பல்வேறு கருத்துக்களையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. हम लोगों ने 17 जुलाई तो मुझे बताया जा रहा है कि तीनों बहनों ने एक ही तरह से शादी करी है। हाँ जी सर। अच्छा, तो आप ये संपर्क में कैसे आया, मतलब कैसे प्लान बनाया, क्या हुआ, तो इसके बारे में? मतलब कि हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते थे तो इधर अपने वीडियो में के लिए बुलाते थे। इनका नजर बहुत अच्छा है और घर वाले हमारी अलग अलग शादी करते थे क्योंकि हमें बिल्कुल बोलते थे हम एक दूसरे से अलग रह नहीं सकते किसी कीमत पर। तो एक मतलब थॉट तो दिमाग में यही चल रहा था कि हम आत्महत्या कर लें, लेकिन इन्होंने बोला कि ऐसा करना बहुत गलत जाएगा। तो फिर हमने आपसी समझौते से एक लड़के से शादी की। शादी के बाद जो बाकी जो मतलब क्या प्लान बनाया हो कि कैसे रहेंगे, क्या मतलब यही है कि हमें तो पता है कि मतलब लड़ाई हो नहीं सकती, जितना भी होगा खुशी रहने की कोशिश करेंगे। बाकी जो पब्लिक बोल रही है कि इनमें झगड़ा होगा तो हम बात झूठ कर लेंगे, तो हम कभी झगड़ा होगा। अच्छा, तो आपकी जो मतलब शादी के बाद तमाम खर्चे होते हैं वो खर्च कैसे चलेगा, मतलब कैसे करोगे इसके बारे में? मतलब घर पे उनकी घर से जमी हुई है ऐसे तो, पर बाकी हम सोशल मीडिया में थोड़े एक्टिव रहते, धंधे वाले तो हो जाता है पहले से। अच्छा, पढ़ाई लिखाई वहाँ तक करिए आप लोगों ने? पढ़ाई लिखाई मेरा बीटेक सेकंड ईयर चल रहा है, दोनों का इंटर हो गया, इंटरनेशनल हो गया, ये अलग। अच्छा, जिनसे आपने शादी की है उनके माता पिता राजी हैं? आपके ही माता पिता राजी हैं? तो जो आपने मंदिर में शादी की थी वहाँ बताया जा रहा था कि पुजारी नहीं थे, क्या था पूरा मामला, किसने शादी कराई आपकी? पुजारी थे, वो अपना फेस रिवील करना नहीं चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि मतलब मैं वीडियो लाइन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ तो वीडियो शूट मत करो, लेकिन हमने की, उनका फेस नहीं दिखाया। तो अब आगे क्या करने का इरादा है तीनों का, चारों का? साथ रहने का बस यही इरादा है, इसी इरादे से शादी की वही चल रही है। आज आपको पुलिस ने बुलाया था, क्या पूछा पुलिस ने क्या पूछा? पुलिस ने यही पूछा कि आपकी मर्जी से हुई है या फिर किसी के दबाव में आकर शादी की है, तो उन्हें बोलते हैं कि हमारी मर्जी से शादी हुई। और आपको जो तमाम कमेंट भी आ रहे हैं कि ये गलत किया आपने, इसको क्या कहना चाहिए? मतलब मुझे तो लगता है ज्यादातर लोग एडमिनिस्ट्रेशन से वो कांग्रेचुलेशन बोलने बधाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे गलत सोच रहे हैं, तो उन्हें आगे पता चल जाता है हमने गलत नहीं किया, अच्छा किया। और काफी उनकी सोच है वो जैसा भी समझते हैं, हम खुश हैं। अधिकतर लोगों का कहना है कि आपने जो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये शादी का एक दिखावा किया है, इसमें क्या कहेंगे? फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए करते तो फॉलोअर्स हमारे पहले से काफी अच्छे हैं और बढ़ते रहते थे। 3-4 हजार फॉलोअर रोज ही बढ़ जाते थे पहले से, तो हमें इस चीज को कोई लालच नहीं है। हम सोशल मीडिया में काफी पॉपुलरिटी पहले से।
वैसे आप सोशल मीडिया से कितने रुपए कमा लेते हैं एक महीने में? मतलब हम अपनी इनकम को ऐसे मैं चाहत के दीजिए कि अपनी इनकम किसी को बताएं। ठीक है भैया। அனல் பறக்கும் செய்திகளை அப்டேட் செய்து கொள்ள நக்கீரன் களத்தை இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.